ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے بھرپور گہما گہمی جاری، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری دن ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل پیر سے شروع ہوگا۔ جانچ پڑتال کا عمل 25 سے 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ 11 جنوری کو نظرثانی شدہ فہرستیں جاری ہوں گی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے آخری روز سرگودا میں گہما گہمی کی صورتحال ہے۔ پی پی ایس سی سے مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ اب تک انیس اکرم سے۔ انیس، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، سرگودا میں قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر امیدواران جو ہیں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان تمام حلقوں پر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے علاوہ دیگر آزاد امیدواروں نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں۔ اور اس الیکشن میں ایک اور خاص بات ہے کہ جو پی پی 80 سرگودا کا حلقہ ہے، وہاں سے مریم نواز شریف جو ہیں وہ بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہی ہیں۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف جو قائد مسلم لیگ نون ہے، وہ بھی انہی حلقوں سے این اے کے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں، اور اب اسی حلقے سے ہی، یعنی کہ جو شاہ پور کا حلقہ ہے، وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر جو ہیں مریم نواز بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ آج آخری دن ہے تو بڑی تعداد میں امیدواران اپنے کارکنان کے ساتھ بڑے بڑے قافلوں میں ڈھول ڈمکے کے ساتھ جو ہیں آج کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، جس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا اور الیکشن کی بھرپور گہما گہمی کا آغاز ہوگا۔ جی، مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما مریم نواز نے لاہور کے حلقہ این اے 120 سے کاغذات نامزدگی جمع کرواتی ہے۔ سہیل شوکت بٹ اور خواجہ عمران نذیر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ این اے 120 سے اب تک 21 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ ریٹرننگ افسر نے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے 30 دسمبر کی تاریخ دے دی۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو پہلے لاڈلا بنا کر لایا گیا، اب معصوم بنا کر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لاڈلے نے ملک کے ساتھ غداری کی، جس کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف جھوٹے مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہوتے رہے تو یہ سچے کیسز میں پیش کیوں نہیں ہو سکتے؟ القادر ٹرسٹ کا 190 ملین پاؤنڈ عوام کا پیسہ ہے، جس کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ کابینہ کا فیصلہ ہے۔ آج ملک کے مجرم کو معصوم بنا کر بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ نا انصافی ہے۔ آج ثبوت سامنے ہے، بند لفافہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن جاتا ہے، سائفر سازش بن جاتی ہے، جس کو کمرے میں کہا جاتا ہے، وہ آڈیو لیکس آ گئے جس میں کہہ رہا ہے کہ کھیلنا نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ واہ! تو میں نے پہلے جیسے کہا کہ 2018 میں لاڈلا کہہ کر مسلط کیا، اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا عوام اب دہشت گردی اور مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں ترقی و خوشحالی ہوگی، لیکن گالم گلوچ و بد تہذیبی نہ ہو، جس کے لیے عوام نواز شریف کو اقتدار میں لانا چاہتی ہیں۔ آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں مفت دوائی اسی طرح آئے جیسے شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں آتی تھی۔ آج عوام چاہتی ہے اس کو سستی بجلی، سستی گیس اسی طرح ملے جیسے نواز شریف کے دور میں ملتی تھی۔ آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں اسی طرح علاج گھر تک پہنچے، یوتھ پروگرام ہو۔ آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں ڈگری ہو تو اس کے ہاتھ میں روزگار ہو، جیسے 2013 سے لے کے 2018 تک ہوا تھا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ لاڈلے کا بیانیہ نواز شریف کے مقابلے میں بنایا گیا اور اب پی ٹی آئی 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ کا ابہام پیدا کر رہی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، نواز شریف 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں حصہ ضرور لیں گے۔ کیمرہ مین عمران چشتی کے ہمراہ فیصل ابراہیم، لاہور اب تک۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ سائفر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ہے، لیکن بار بار کورٹ کا دائرہ اختیار تبدیل کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہیں ہوئے اور الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لاہور سے دیکھیے فیصل ابراہیم کی رپورٹ۔
मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था कि कल सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के सियासी असरात मरतब होंगे। मौजूद जजेस के रिमार्क्स सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये फैसले ट्रायल कोर्ट में होने वाली समाअत को मुतासर करेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि फैसले में वजाहत कर दी गई। आज अगर ये बात इसको बगौर देखा जाए तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑनरेबल बेंच उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ लिखा कि 2018 के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, राइट नहीं थी। हम इसकी 4 साल तक दुहाई देते रहे, किसी जगह पर वो बात ना सुनी गई ना मानी गई, किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया। मलिक अहमद खान का कहना था कि साइफर के मामले पर कैबिनेट कमेटी के इजलास में कहा गया कि साइफर में कुछ नहीं था, लेकिन इसे मुतनाज़ा बना दिया गया। जब एक सियासी जमात कलअदम हो गई तो इलेक्शन कमीशन कैसे इंतखाबी निशान देगा। पीटीआई के ना जनरल सेक्रेटरी और ना ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त थे, सब कुछ पार्टी के साबिक सरबराह ने जानबूझकर किया। ये कोई बल्ले के निशान का मसला नहीं था, मसला ये था कि जो ट्रीटमेंट मुझे एज अ पार्टी PMLN को मिलती है, मुझे इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई आपके सेनेट के इंतखाबात हैं, नन ऑफ योर मैन कैन राइट PMLN, उसके ऊपर लिख नहीं सकते। क्यों? कि आपके इंतखाबात की जो शर्त थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो यू विल बी हैविंग नो नेम्स ऑफ द पार्टी एंड सिंबल। तो ये हुआ। मलिक अहमद खान का कहना था कि पीटीआई साबिक सरबराह ने इस मुल्क की सियासत और मईशत पर हमला किया और मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी। एक तरफ नैब नवाज शरीफ के मुकदमे की तफ्तीश कर रही थी तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट भी अलग इख्तियार इस्तेमाल कर रही थी। इनका कहना था कि कहीं भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि पीटीआई के लोगों से कागजात छीने जा रहे हों। कैमरामैन इमरान चिश्ती के साथ फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि साकिब निसार ने जिस शख्स को सादिक अमीन का लक़ब दिया उसके तमाम बुरे असरात मुल्क ने भुगते। सादिक अमीन ने मुल्क की मईशत तबाह की और बुरी खारजा पॉलिसी से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब कर दिए। ऐसे शख्स की चोरी साबित होने के बावजूद मासूम का खिताब देना ज्यादती है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे फैसल इब्राहिम। पार्टी सेक्रेटरी 8 लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि नवाज शरीफ पर जाली केसेस बनाए गए, उन्होंने इसकी सजा भी भुगती, लेकिन आज उनके खिलाफ केसेस वापस हो चुके। ताहम मुल्क को कौम का खासा नुकसान हो चुका है। ये सर्टिफिकेट देने का जो अमल है ये ना रुकने का नाम ले रहा है और पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की मईशत ने इन सर्टिफिकेट्स को के जो असरात भुगते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तबाह बर्बाद हो गई। मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि अदालती फैसलों को मानते जरूर हैं, लेकिन इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जिसे मासूम करार दिया जा रहा है वो झूठे बयाने हल्फी देता रहा, अवाम से रोटी का नवाला छीनता रहा, 9 मई के वाक़यात का बराह रास्त जिम्मेदार रहा। तो ऐसे मासूम से बल्ले का निशान वापस लेने के बाद घड़ी का इंतहाबी निशान दे देना चाहिए। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर का झूठा वादा करके पाकिस्तानी कौम को धोखा देके, चकमा देके और चूरन देके निकल जाता है, वो मासूम है। अगर मैं तो कहता हूं कि इसको तो बल्ले का जो निशान इससे लिया गया इस मासूम से, इसको तो घड़ी दे देनी चाहिए, इंतखाबी निशान, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि घड़ी चोर को इंतखाबी निशान भी घड़ी दिया गया है। मुस्लिम नून के रहनुमा का कहना था कि सर्टिफिकेट देने का अमल रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कौम ने पहले ही सादिक अमीन के सर्टिफिकेट के बायस बहुत नुकसान बर्दाश्त किया। अगर मासूम को पार्लियामेंट पर हमला की सजा दे दी जाती तो कौम तबाह न होती और न ही 9 मई का वाकया रूनमा होता। कैमरामैन टीम के हमरा फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि साइफर मामले पर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था उस दिन बानी PTI पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। मज़ीद तफसीलात ज़फ़र सुमरो की इस रिपोर्ट में।
कराची में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि साइफर एक बड़ा ड्रामा था जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तहरीक अदम एतमाद के जरिए सिलेक्टेड को हटाया गया, मगर अवाम को ये जाहिर किया गया कि जितनी भी सियासी पार्टियां जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद चलाई वो गद्दार हैं। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक सिलेक्टेड धांधली ज़दा हुकूमत को हटाने की मूवमेंट शुरू हुई तो पीटीआई के चेयरमैन और उसके फॉरेन मिनिस्टर ने जानबूझकर उसको एक क्रिटिकल इशू बनाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी सबके लिए लिविंग प्लेइंग फील्ड चाहती है और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान माजी में तलवार था, हमसे छीन लिया गया, हमने तीर से इलेक्शन लड़ा। अगर पीटीआई समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो अदालतों में चली जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सबके लिए लिविंग प्लेइंग फील्ड हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 पीस पार्टी थी, माजी में 3 पीस को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया, 4 पीस बनी, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ी। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था, माजी में तलवार हमसे छीन लिया गया, हम तीर पे इलेक्शन लड़े, हमने इलेक्शन लड़ी। और जिसकी आप बात करें कि उनसे बल्ला निशान ले लिया, किसने लिया उनका निशान? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। अगर पीटीआई समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वैसे अदालतों में चली जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का साफी जान मोहम्मद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी से मुताल्लिक कहना था कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से निगरान हुकूमत से शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हमेशा साफियों के साथ खड़ी है। कैमरामैन जैन अली के हमरा जफर सुमरो, कराची। अब तक कराची में 32 जबानों से ताल्लुक़ रखने वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी कहते हैं कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। जजेस काबिल एहतराम है, साइफर केस में एतराज़ फैसले के बजाय ऑब्जर्वेशन पर हो सकता है। तफसीलात सफर सोमरो की रिपोर्ट में। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। 32 मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया है। न्यू बरादरी है और ख़ास तौर पे इनकी जो ये कौमी मेवाती तहरीक है, इसमें 32 मुख्तलिफ इनकी जो कौमें हैं उनका ये मजमुआ है, उनका ये इत्तेहाद है जिसमें ये सब इकट्ठे हैं। मुख्तलिफ इनकी तंजीमें और सब मिल के उन्होंने एक तहरीक बनाई है कि वो पूरे सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनकी वो भरपूर हिमायत करेंगे। पीपीपी कराची डिवीज़न के सदर ने ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो सियासी आदमी नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इमरान खान ने हमारी फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उस पर हमलावर हुआ। उसने अदालतों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, वो उस पर हमलावर हुआ। उसने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, वो उस पर हमलावर हुआ। उसने किसी सियासी जमात को नहीं छोड़ा, किसी सियासी लीडर को नहीं छोड़ा, सबके ऊपर हमलावर हुआ। तो एक ऐसा आदमी, आप उसका कंपैरिजन पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से नहीं कर सकते। उस मौके पर शाहिद मेवाती ने कहा कि मेवाती कौम पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान करती है। हमने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान को बचाएंगे। आज हम पाकिस्तानी मेवाती हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मालिक हैं और पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाएंगे। और हमने आपस में मरकज़ी काबीना ने जो फैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी की सिंध में मुकम्मल सियासी तौर पर हिमायत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शाहिद मेवाती को यकीन दहानी कराई कि मेवाती बरादरी के तमाम मसाइल हल करेंगे। कैमरामैन जैन के साथ जफर सुमरो, अब तक कराची। मुल्तान में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के ज़िला अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली खान। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तोसी के बाद आज भी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जमात इस्लामी के ज़िले अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी ने कौमी असम्बली के हल्का NA 149 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। इनका कहना था कि जमात इस्लामी ने मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हल्कों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अवाम को बताना चाहते हैं कि तराजू का निशान अवाम का निशान है। मुल्तान के मसाइल हल करने और मुल्तान के आवाम के दुख दर्द को दूर करने का इंशाअल्लाह ताला अब तरतीब दिया है। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने पूरे मुल्तान की हर नशिस्त पर
अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। डॉक्टर सत्तर हाशमी का कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आवाम को डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों का ताल्लुक जागीरदारों और करप्ट माफिया से नहीं। कोरोना हो, सैलाब हो, जमात इस्लामी फलाही कामों में नजर आती है, मगर दीगर जमातें पनामा, तोशाखाना और अपने अपने केस खत्म करवाते दिखाई देते हैं। जमात इस्लामी मुल्तान पर मुसल्लत खानदानों की सियासत खत्म करेगी। चाहे कोरोना हो, चाहे सैलाब हो, चाहे जल्जला हो, तो खिदमत में हमेशा जमात इस्लामी नजर आती है। लेकिन आपको मालूम है कि दूसरी पार्टियों की कारकर्दगी क्या है? पनामा लीग्स है, पंडोरा लीग्स है, तोशा खाने के मसाइल हैं। ज़िला अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि महंगाई और बेहतर मईशत के लिए अवाम जमात इस्लामी का साथ दें। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। मियां चन्नू में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। उम्मीदवार भरपूर जोश और जज्बे के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे। उम्मीदवार असली शेर हमरा लाए और घोड़े का डांस भी करवाया। देखिए आशा नमान की रिपोर्ट। मियां चन्नू में भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। NA 146 की सीट के लिए 20 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सूबाई हल्का PP 208 की सीट के लिए 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि हल्का PP 207 की सीट के लिए 14 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 146 की सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पीर मोहम्मद असलम बोदा और PTI रहनुमा पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। कि PP 208 की सीट पर नून लीग के रहनुमा राना बाबर हुसैन, PTI रहनुमा जमशेद शौकत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी शाहिद बशीर और मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी फैसल हमीद के माबैन मुकाबला होगा। PP 207 की सीट पर नून लीगी रहनुमा आमर हयात हराज, PTI रहनुमा पीर अली अब्बास शाह, आज़ाद उम्मीदवार चौधरी परवेज अख्तर हुसैनी और अनवर हमीर रास्ता के दरमियान इलेक्शन का मुकाबला देखा जाएगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आने वाले उम्मीदवारों ने भरपूर जोशो जज्बे के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि नून लीग के रहनुमा राना बाबर हुसैन अपने हामियों के हमरा असली शेर को साथ लाए और घोड़े का डांस भी करवाया गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए थे। कैमरामैन के साथ अशर नुमान, मियां चन्नू अब तक। मुल्क के दीगर हलकों की तरह हल्का PK3 में भी मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाने शुरू कर दिए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सैयद जाफर शाह ने अपने कागजात दाखिल करवाए। मोहम्मद मोहतर अली की रिपोर्ट देखिए। हल्का PK3 से मुख्तलिफ पार्टियों से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराने शुरू कर दिए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सैयद जाफर शाह दर्जनों गाड़ियों के जुलूस में इलेक्शन ऑफिस बहरीन पहुंचे और कागजात नामजदगी दाखिल कराए। इस मौका पर उनके साथ साबिक सूबाई वजीर व अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा अयूब खान ऑफ अशाड़ी भी थे। हल्का PK3 से इस वक्त तक 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करा चुके हैं। मोहम्मद मोहतर अली, बहरीन अब तक। हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों से मुतालिक एतराज़ात पर समाअत आम इंतखाबात के बाद की जाएगी। इस वक्त हल्का बंदियों से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन वापस भिजवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि 30 नवंबर के हल्का बंदियों पर ही इलेक्शन करवाए जाएं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।